we have promised you on Sarthi IAS Foundation Day 10 days back कि कारवा रुकेगा नहीं. And you must have seen all the beautiful launches of the wonderful faculties in last 3 days. So here in this video, we are launching the most credible team of this whole UPSC ecosystem, which will take your preparation, UPSC preparation to the next level. See, जब मैं सिविल सर्विसेज छोड़ के आया था, this was my dream. एक प्लेटफॉर्म जो क्रेडिबल हो, अफोर्डेबल हो, ऑनलाइन हो, वहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हो और बेस्ट कंटेंट हो. This today is the materialization of that dream. Today, all of us in this video make this commitment to you that we will work the hardest, we will put our maximum hours, we will put days and nights together to ensure that you not only get the best content, you not only get the best pedagogy, but आप अपने selection की तरफ एक कदम बढ़ाएं हमारे साथ. With this idea and this commitment in mind, I would like to officially launch, with your permission, our GS Foundation batch for UPSC CSE 2027. Further in this video, we will discuss with all the faculty how we are going to approach their respective subjects. So let's get started and let's prepare with Sarthi IAS, affordable bhi or selection bhi. So with all these faculties, now we are launching our live GS Foundation batch for UPSC CSE 2027. This batch is starting on 16th of February 2026. And इसमें जो क्लास लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा. इंग्लिश मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विल बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल दी फैकल्टीज. क्लास नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे जो पीडीएफ नोट्स हैं. एंड इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी दिसंबर 2027 तक. एडिशनली सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं. लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा एंड दोज रिकॉर्डिंग्स यू कैन वॉच मल्टीपल टाइम्स. देयर इज नो इशू इन दैट. नाउ लेट अस आस्क शिविन सर, why anyone should join Sarthi IAS for this course? Sir, I think it is a no-brainer now to come to Sarthi IAS. And sir, इसके multiple reasons हैं. Firstly, sir, our team. हम सबने देखा ही है the credible faculty that is here now, and I'm sure and I can say this with 100% confidence that we have the best team here now. Sir, आगे इस वीडियो में हम और भी उन सारी faculty से discuss करेंगे उनकी approach. The second reason, sir, is our toppers, the results that we have delivered. So the feedback that I'm sure every student has heard, the handwritten feedbacks that we've gotten, we produced 175 rankers in UPSC CSE 2024 और हम sure हैं कि 2025 में ये number और बड़ा होगा because 750 candidates who were students of Sarthi IAS, इंटरव्यू वाले नहीं हैं, हमारे students ने 750 students ने इस बार इंटरव्यू दिया है. Right. And thirdly, sir, and most importantly is our dedication and our commitment to the students कि हम सिर्फ यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं. हम बस ये नहीं है कि यार आए आपने क्लास करी अब आप चले जाओ अब अपना देख लो. We are here with the students till the last minute. We are here to hold their hands. We are here to ensure that they don't only learn, but they also become good students in general. किसी भी चीज़ को पढ़ने में वो समझ पाए. Right. बाकी सर अगर आप किसी भी और कोचिंग से कंपेयर करें, in the foundation courses, nobody takes care of means. Nobody thinks of answer writing. Nobody takes a holistic approach of the exam. But हमने ये सोचा है कि कोई भी स्टेज हो, prelims हो, mains हो, interview हो, this is the one-stop solution for the entire examination. Right. So sir, the idea is simple. अगर आप देखोगे कि we'll start with foundation. ऐसा नहीं होगा कि किसी भी random subject से start किया. 4 basic core subjects हैं that every student has to study, and that is polity, economy, geography and modern history. Right. सबसे पहले कोई भी student वो 4 subjects पढ़ेगा. Then we will move on to the mains. Mains is the nucleus of the exam. यार देखो ultimately pre-clear कर लो, कितने भी नंबर ले आओ, 2025 नंबर का पेपर है टोटल, उसमें से 1750 मार्क्स मेंस के हैं. तो जिसने मेंस में अच्छे आंसर नहीं लिखे वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये फैक्ट है. राइट. एंड मेंस में सर अगर हम देखें हमारी जो टीम है, जो एफर्ट हमने लगाया है, आई थिंक वी हैव द बेस्ट टीम एंड वी हैव ईयर ऑन ईयर delivered on that. And right. And also it is important कि अगर आप बाकी जगह के फाउंडेशन कोर्सेज को देखेंगे, nowhere mains is covered in this much detail जितना हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में मेंस को कवर कर रहे हैं, which include content, answer writing, write smart, laws, everything we are covering within this foundation batch only. Right sir. So sir उसके बाद भी we have specialized experts for interview guidance as well. Right. तो ऐसा कोई step नहीं है जो हमने छोड़ा हो. Throughout the journey, we are going to support the aspirants. तो सर अगर मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, so we will start with the live foundation phase. यहाँ पर सर we are going to have live lectures for the 4 core subjects that I mentioned. उसके बाद सर हम means foundation phase में आएंगे. GS1, GS2, GS3, GS4 and essay डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. और अगेन बात वही है कि पढ़ के छोड़ना नहीं है. उसके बाद आंसर राइटिंग फेज पे आएंगे वेयर आई विल बी डूइंग राइट स्मार्ट. आप बहुत टॉपर से इस बार राइट स्मार्ट का नाम सुनने वाले हो, बिलीव यू मी.
तो राइट स्मार्ट एंड लॉज विद वरुण सर, वी आर गोइंग टू डू दिस ताकि हमें आंसर राइटिंग भी आ जाए, एंड देन इवन हैंड होल्डिंग फॉर इंटरव्यू। सो ऑल दीज स्टेप्स we are going to cover in this course, and this is a complete one-stop solution for general studies for the UPSC civil services exam. Right. So I think sir that it's really ये question है नहीं कि सारथी IAS आना चाहिए यार। And rightly you said कि Right Smart has become a result machine in this whole UPSC coaching ecosystem. In fact, Right Smart इतना popular हो गया है कि you might not be knowing, but at company level we have applied for the trademark of the Right Smart as well, because we know everyone is going to copy it. Right sir. So sir अब ये दो नई चीज़ें हैं जो मैं सारे स्टूडेंट्स को अनाउंस करना चाहता हूँ। सर मैंने जो अभी तक फाउंडेशन कोर्स में एक्सपीरियंस देखा, ऑफलाइन के भी यहाँ पर बड़े टीचर्स आए हैं, तो उन्होंने जो अपनी बातें बताई उससे हमें पता चला यार कि पढ़ लेते हैं लोग, बट वो सपोर्ट नहीं होता थ्रू आउट। सर हमेशा बच्चा सोच रहा है कि यार मैं प्लानिंग कैसे करूँगा, मेरे को हेल्प कब मिलेगी, मैं ठीक ट्रैक पे हूँ क्या, मेरे टारगेट सेट बन रहे हैं क्या। तो सर मैंने सोचा कि जब मैं अपना फाउंडेशन कर रहा था ऐसी एक बड़ी ऑफलाइन कोचिंग से, आई हैड द सेम आइडिया कि यार काश मेरा एक एल्डर ब्रदर होता जो सिलेक्टेड होता या इंटरव्यू अपीयर्ड होता, जो ये काम कर पाता। थैंकफुली सर यू प्लेड दैट रोल फॉर मी, बट मुझे लगा वो थोड़ा लेट था। मेरे फाउंडेशन जर्नी में हो जाता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। सो दिस इज द फर्स्ट न्यू फीचर फॉर एवरी फाउंडेशन स्टूडेंट। I am going to do regular mentorship sessions with you, where I am going to lead this idea of answer writing as well as revision as well as for planning. जो भी आपकी ये बाकी नॉन अकेडमिक टेंशन है ना कि यार मुझे प्लानिंग करनी है, मेरे टारगेट सेट करने हैं, मेरी रिविजन हुई, मैं एग्जाम में अप्लाई कर पा रहा हूँ, आप मेरे पे छोड़ दो। यू हैव अ एल्डर ब्रदर हु इज सिलेक्टेड, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। यू जस्ट शो अप एंड स्टडी। राइट। द सेकेंड थिंग सर, MCQs इंपॉर्टेंट हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11th-12th में उतने MCQs सॉल्व नहीं किए एंड दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। तो उसके लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग लाइव MCQ सेशंस फॉर एवरी फाउंडेशन बैच विद इन योर कोर्स। तो आइडिया ये है कि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो और उसके LMS सेशंस अटेंड करो, एंड दीज विल बी डन बाय जसलीन मैम। राइट। सो दीज आर टू वंडरफुल फीचर जो हमने अभी 2027 बैचेस में ऐड किए हैं, एंड जो भी पुराने स्टूडेंट है 2027 बैचेस के, उनके कोर्स में भी हम ये इंटीग्रेट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। राइट सर। So now, as you can see, like I was saying, this is the handwritten feedback of so many toppers that we have, and this year this list will definitely be greater. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारथी है इसके यूट्यूब चैनल पे टॉपर्स के फीडबैक देख सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दे वर नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, दे वर पार्ट ऑफ सारथी IAS पेड कोर्सेज, ईदर फाउंडेशन और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन कोर्सेज। ठीक है। So sir, with this brilliant slide here, let us now talk to all of our faculty and see what approach they are going to carry for this foundation course. So starting with history, we have Himanshu Khatri sir here. Sir is my senior from the IRS, also attended IIT Delhi. So sir, history mein what is the approach we are going to follow for our foundation students? Well, as I said in my launch video also, जी। we are going to focus on bypart of things and we are going to develop a perspective. जैसे एक पर्सपेक्टिव क्या है कि ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो इट्स अ स्टोरी अबाउट टू सेगमेंट्स, वन इज स्टेट एंड सेकंड इज पीपल। जी। बिकॉज जिस जॉब के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वो क्या है, वी आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन स्टेट, एंड स्टेट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। नाउ इन आवर civilization, Indian civilization, at different points of time periods, different territories have been under different kind of states, and there has been a different way of life of people. Right. तो अगर आप सही में अगर सिलेबस देखें एंशियंट का, मिडिवल का, ठीक है, तो एंशियंट एंड मिडिवल के दो ब्रॉड कैटेगरीज जैसे हम बना सकते हैं। एक आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे हम महाजनपदास हो गए, मौर्याज हो गए, इनकी बात हम कर रहे हैं, दिल्ली सुल्तनत और ये सब हो गया। हम स्टेट के स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या गलतियां की थी जो अब हमारा नेशन स्टेट ना करे, और उन्होंने पास्ट में क्या अच्छी चीजें करी थी जो अब हमारा नेशन स्टेट उनसे सीख सके। तो ये पर्सपेक्टिव है। और दूसरा क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सर्व द पीपल बाय बीइंग अ ब्यूरोक्रेट टू द नेशन स्टेट। तो इसलिए common man does not want to be MP, MLA minister. Common man wants economic security, physical security, socio-cultural security. जी। तो इसकी वजह से उनकी वो जो डे टू डे लाइफ है उस पे फोकस रहता है, प्लस कॉमन मैन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर। जी। तो इस तरीके से, चाहे छोटी सी बात है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ चाहे बस सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बट उसके अंदर भी आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव अमंग दिस। राइट। इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बस ये चीज चेंज हो जाती है कि वहां पे जो टेरिटरी है वो पूरी अर्थ है,
तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज डोमिनेटेड बाय सुपर पावर चेंजेस एंड लाइक राइज एंड फॉल ऑफ सुपर पावर्स, राइट राइट। प्लस वहां पे भी पीपल का है। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर देयर वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल और एक्सप्रेशन, क्योंकि कॉमन मैन को एमपी एमएलए मिनिस्टर तो बनना नहीं था। तो जी फिर जब उसने डिसाइड किया कि मेरा एक रोल होना चाहिए स्टेट में, जिसको मैं नेशन स्टेट कहूँगा, तो वो रोल कैसे होना चाहिए, मेरे क्या अधिकार होने चाहिए, तो इस तरीके से हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री तक आएंगे। एक बहुत ब्रॉड मैं बता रहा हूँ। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो हमको मौका मिला, तो फिर Right. जो challenges with respect to that state, reorganizing its territory, right? Challenges with respect to lives of the people, for example, official language status debate, राइट or reorganization of provinces on the basis of language. राइट Aspiration of the people को इस nation state में कैसे solve किया, meet किया, उसके अंदर क्या challenges आए, तो एक ये पूरा दृष्टिकोण, जिसमें सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम साइलोज में नहीं पढ़ रहे, बट Right. इसके थ्रू हम एक उस पूरी की पूरी चीज को कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टोन एज, राइट, टिल द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सो सर इट्स ऑल कनेक्टेड, Yeah. इट्स ऑल ओवर वन थीम कि यार स्टेट कैसे रूल कर रहा था और लोग उसको कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मतलब ब्रॉडली हम ऐसा सोच सकते हैं। Right, and starting from ancient history Yes. to world history, sir will be covering the entire portion of history for prelims and for mains. Sir, एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, प्री और मेंस में क्या डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर हम रखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स द एग्जाम इज वेरी डिफरेंट इन बोथ दी स्टेजेस, सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर डिफरेंट अप्रोच हियर? देखिए, जहां तक कॉन्सेप्ट को समझाने की बात है, तो इंटीग्रेटेड वे में हम पढ़ेंगे। वहां पर बिल्कुल। हम ये डिफरेंशिएशन नहीं लेके आएंगे कि ये प्रीलिम्स है और ये मेंस है, राइट क्योंकि मैं किसी भी एक मेंस क्वेश्चंस में से 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। करेक्ट स्टूडेंट को बस ये हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो इसमें से कितने प्रकार के यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी का माइंड किस प्रकार से काम करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट right? So that we are able to train the students in guessing the FYQ. Everyone talks about PYQ. I say talk about FYQ, future year question. PYQ Right. तो कोई भी कर ले। Right. And मेरे students they will be able to guess FYQ. मतलब ये मेरा मिशन रहेगा, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। So sir, I'm sure we'll be very successful in this mission. Thank you so much, sir, for your input. Thank you. So for polity, we have M. Puri sir here. Sir has had a teaching experience of more than 25 years. I'm sure कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो शायद 25 साल के खुद ना हो, पर सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, right? And we'll just now talk to sir about how sir is going to approach polity in this batch. ओके अच्छा डॉक्टर शिवन, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, बिकॉज जो फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी यंग होते हैं, ठीक है, Yes. और उनके जो आइडियाज़ होते हैं अबाउट द जनरल प्रिपरेशन एंड पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा सब्जेक्ट है, वो थोड़े बहुत वेग रहते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। तो मेरी पहली अप्रोच हमेशा ये रहती है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर करूँ। यू नो, मैं जस्ट टू गिव यू एन वेरी स्मॉल एग्जांपल, जी राइट, कि जैसे द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबको पता है लोकसभा का स्पीकर होता है, जी ठीक है, पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा कभी बोलता नहीं है, वो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता। जी। वो जब भी बोलता है सिर्फ ना लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए बोलता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में शोर शराबा होता है, कई बार जी सर पैंडेमोनियम हो जाता है, थोड़ा स्लोगनरिंग हो जाती है, तो सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए बोलता है। तो ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिबेट्स, ठीक जी। है, और उनके तो पहले इंस्टेंस में वोट भी नहीं कर सकते वो किसी चीज़ के ऊपर, जी राइट। जब वो व्हेन ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक और पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, देन व्हाई इज ही स्टिल कॉल्ड अ स्पीकर, ठीक है। जी। अब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, तो उनके अच्छे टीचर जो फिजिक्स मैथ्स के होते हैं, उनको ये बात कही जाती है कि यू कैन डू गुड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड मैथ्स इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, जी ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर एक्सियम अप्लाइज मोर टू ह्यूमैनिटीज। Correct. ये शायद फिजिक्स मैथ्स पे उतना अप्लाई ना करता हो जितना कि हमारे से अप्लाई करता है, कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो आपकी जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही कोई ना कोई सुपर स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब जैसे लोगों को ये नहीं पता होता, बड़ा बेसिक चीज़ है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। मैं जी। क्लास में पूछता हूँ तो वो बोलते हैं सर बेलेबल ऑफेंस जहाँ में बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती है। मैंने कहा भैया सब में बेल मिलती है, ठीक है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट वन जिसमें बेल नहीं मिलती है, जी ठीक है। पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी, सीआरपीसी, जी इंडियन एविडेंस एक्ट, अब तो नए आ गए हैं ना वो भारतीय न्याय संहिता, हाँ, सर। बीएनएसएस आ गया है, ठीक है, बीएसए साक्ष्य अधिनियम आ गया है, जी। उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। जी। तो माय initial approach is to build the fundamentals of the student in terms of the key concepts, और जो words होते हैं, जो typical terms हैं हमारी पॉलिटी के इकोसिस्टम के अंदर, उसकी क्लैरिटी पहले उनको मिल जाए। जब वो क्लैरिटी उनको मिल जाएगी, now that becomes a platform for then analyzing more complex concepts, जिस पे मेंस पे क्वेश्चन आते हैं,
जी ठीक है ना, ताकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, आपके प्री के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। जी। मतलब नॉर्मली आई मेक अ प्रॉमिस टू माय स्टूडेंट्स, इस लाइन पे मैं प्रॉमिस करता हूँ जी कि हालांकि आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रिटेंशियस व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, जी कि आप मेरी क्लासेस एक बार लगा लोगे ना, तो मैं एक गारंटी कर सकता हूँ आपको जी सर। कि मेंस और प्री में कोई ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके सामने जो आपको नहीं आता बाकियों को आता है। जी ये जरूर हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सिर्फ आपको आता है और बाकियों को नहीं आता। जी। ठीक है, दिस इज द गारंटी आई गिव टू माय एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। हाँ। ओके जी कि ये कभी नहीं होगा कि भी आप बाहर आके को देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, दूसरा बच्चा कह रहा है ये तो मुझे आता था। ठीक है, जी। दिस विल नेवर। जी हाँ, द रिवर्स माइट हैपन, इट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन। जी। ठीक है, सो सर अदर देन पॉलिटी इन फाउंडेशन जैसे कि आप जानते हैं सारथी आईएएस आल्सो फोकसेस ऑन द मेंस एग्जाम। तो सर जीएस2 मेंस भी हमारे साथ पढ़ाने वाले हैं। सो सर व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर मेंस वंस द फाउंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्लियर? मेंस में क्या फोकस हाँ, रहेगा? अब पता क्या है, जैसे अब जब से ये जो वी हैव हैड दिस क्वाड्रिफिकेशन ऑफ द जीएस पेपर, 4 पेपर हो गए ना, जी सर। उससे पहले 2 पेपर आते थे। जी तो उस समय के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, उस समय मुझे लगता था कि जैसे ना प्री और मेंस के क्वेश्चन में फर्क ही नहीं है। जी प्री में क्वेश्चन आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। मेंस में क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स का, व्हाट आर द मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे जी ये क्या, इट इज द सेम क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन। राइट एंड डाउन। जी। ठीक है, प्री में क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स आर मनी बिल्स। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज अ मनी बिल, जी राइट 150 वर्ड्स ऑन इट। जी ठीक है, नाउ दिस इज नो लॉन्गर द केस। राइट जो आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, जो रेगुलर लॉज पार्लियामेंट पास करती है उन चीज के ऊपर, और जो जनरल हमारा गवर्नेंस का इकोसिस्टम है, जब वो क्लियर हो जाते हैं ना, नाउ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड आर फ्रॉम द अप्लाइड डायमेंशन। जी इशू बेस्ड एक ये बड़ी हालांकि क्लीशेड सी टर्म है, ये भी स्टीरियोटाइपिकल टर्म है कि इशू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जी राइट। और क्वेश्चंस दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मोर एज अपोज टू जस्ट रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। राइट ठीक है, तो जब वंस योर फंडामेंटल्स आर, जो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी फंडामेंटल्स जी। के अंदर, तो देन वी कैन बिल्ड ऑन। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में कुछ चीज आती है, स्टूडेंट की एक ओपिनियन बनती है उसके ऊपर, देन यू कैन आल्सो क्लैरिफाइड फ्रॉम मी कि सर ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो हमने कैसे ओपिनियन देनी है और क्या ओपिनियन देनी है। राइट इट हैज बिकम मोर एनालिटिकल मोर इशू बेस्ड, Right, और sir. एक तरीका होता है लिखने का, इंट्रोडक्शन कैसे होती है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स कैसे किए जाते हैं, कंक्लूजन और आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्या लिंक होना चाहिए। जी So these are the things we focus on so that you can, my point is this. Let us say some student with respect to a mains question has 5 points of analysis to write. उसके पास जी। 5 पॉइंट उसके दिमाग में है कि हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। जी ठीक है, आपके पास भी वही 5 पॉइंट्स हैं, आप उनको कैसे लिखते हो राइट टू स्कोर बेटर टू मार्क्स। स्कोर बेटर मार्क्स। जी दिस इज द की ओवर इट। वो भी 5 पॉइंट लिखेगा, सेम पॉइंट्स, आप भी वही 5 पॉइंट लिखोगे। जी आप कैसे उन 5 पॉइंट्स को लिख के नंबर ज्यादा ले सकते हो, दिस इज द फोकस। Sir, I've always said that everybody at Sarthi IAS is a Marxist, and Marx is spelled as M-A-R-K-S. So the idea here, Right. our focus is कि concepts build करेंगे, we'll stay with the fundamentals, but ultimately we have to get the most and the maximum marks possible. So thank you so much, sir, for this input. Thank you. So now coming to economy. In economy, we have my teacher of economics, Aditya Kalia sir, who will be teaching all of you the foundation of economics. तो sir क्या approach हम यहाँ पे रखने वाले हैं? अपनी अप्रोच इकोनॉमिक्स की वुड बी दैट वी आर गोइंग टू फोकस वन ब्रॉडली स्पीकिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग योर बेस। आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होगा आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। याद करने वाली चीज़ें याद करेंगे, लेकिन जो चीज़ समझनी है वो समझेंगे, समझ के आगे बढ़ेंगे, और जब समझ के आगे बढ़ेंगे तो याद करने की चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। सो इट मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, लर्निंग ऑटोमेटिक, remembering automatic. It can't be remembering and then forgetting unless your base is strong. That is what we'll focus upon. Right. I will teach you concepts. I will teach you subjects. When you look at economics syllabus, अब syllabus में लिखा हुआ बड़ी broad सी term है growth and development, या फिर we'll look at unemployment. There is what in unemployment, what in poverty, what in growth. So Right. this syllabus is very vague. Right. Our source of reference is previous year questions. Our objective is future year question. Right. So we'll try to build concepts so that we are able to, one, solve the previous year questions. Right. Second, from that we are able to also be able to solve the question that are going to come in exam. That will come only when we are focused on building concepts. Right. तो सर आई थिंक जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि हम कंसेप्चुअल फोकस को फर्स्ट रखेंगे। जी बिल्कुल, The idea is to understand everything. अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Right. एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सी व्हेन यू लुक एट इकोनॉमिक्स,
questions in prelims and mains both. You'll see that you 4 options हैं, आप 4 में से 2 conceptual हैं, 2 factual हैं. Right. लोग क्या करते हैं कई बार, सर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, conceptual ना पढ़ूँ, सर मैं conceptual पढ़ूँ, करंट अफेयर्स ना पढ़ूँ. अरे यार कोई डिवीजन नहीं है दोनों के अंदर. Right. आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ रट के चला जाऊंगा और फिर एग्जाम में सॉल्व कराऊंगा, कभी नहीं होने वाला है ऐसा. Right. आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की. वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं. We'll make sure that you have full understanding, and with our efforts and your dedication, I hope that you will be able to do well. That is what our approach is. Right, sir. So I think economics, sir, सारे subjects में से probably is the most conceptual, the most technical, and the objective here will be to resolve that technicality. Technical का मतलब tough नहीं होता. बिल्कुल Technical का मतलब बस ये होता है कि थोड़ा effort और डाल दें. बिल्कुल. We will put in that effort, and I'm sure the students will also put in that effort, sir. Yeah. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, because you said economics is technical, conceptual amongst others. Every subject has its own uniqueness, and you want to think at that as a challenge or a property or a character of that subject. It's up to you. Let's not go into the semantics. Right. Economics में question, I'll give an example. Question will be, which of the following will be least inflationary in nature? So when you see the question, it looks like it's inflation question, but then you see the options. Option is RBI printing more money, that is monetary policy का aspect है. Right. Then you see some foreign investment coming into the country, वो external sector का aspect है. Right. Then you see some fiscal deficit of the government. Question लग रहा है inflation का है. 4 option अलग अलग chapters के हैं. Right. तो अगर आपने याद कर रखी हैं चीजें तो फिर नहीं हो पाएगा सवाल. Right. आपकी पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये हमारा फोकस रहेगा. Right. Thank you, sir. And I'm sure that students, once they have understood this conceptual part, it will be very easy for them not only to solve questions, but also to understand current affairs, understand what is happening in the country, and generally understand this subject, not only for prelims, but also for mains. Yeah, that's it. So for geography now, we have Pallavi ma'am here. Ma'am has not only appeared in 3 UPSC interviews, not only does she have 100 percentile in UGC for geography, she's also written a book with the great Marjis Hussain sir. So ma'am, how are we going to approach geography here in our foundation course? देखिए ज्योग्राफी जो है एज आई ऑलवेज से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंसेस. सो इसमें कुछ पार्ट हाईली कॉन्सेप्चुअल रहता है एंड देन अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप उस पर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज वाला जो पार्ट है वो इजीली बिल्डअप कर सकते हैं. सो हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि कॉन्सेप्ट एक बार में जो क्लियर हो जाए उसके बाद आपको उसका रट्टा ना करना पड़े. एक बार आप वो क्लियर कर लो तो आप कभी भी लाइफ में वो चीज़ भूलेंगे नहीं. सो फोकस ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. मैं इंश्योर करूँगी कि एक एक डाउट आपका क्लियर रहे. एंड तक आई विल वेट फॉर द क्लासेस टू एंड जब तक आपके डाउट्स नहीं हो जाते. एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट मैपिंग, मैपिंग में भी देखिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मिनिमम 3-4 क्वेश्चंस आते ही हैं एवरी ईयर. एंड मैपिंग एक लो हैंगिंग फ्रूट है. उस पर थोड़ी सी मेहनत आपने कर ली तो आपके वो 8 नंबर आपकी जेब में है. सो मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग, हम उसको भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. वर्ल्ड मैपिंग कॉन्टिनेंट वाइज रहेगा, प्रॉपर एक ऑर्डर से हम चलेंगे, बहुत खिचड़ी नहीं बनेगी. आई विल मेक श्योर ऑफ दैट. इंडियन मैपिंग मैंने इंटीग्रेट करके रखा है. फिजिकल, जब हम इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहीं पे मैं आपको इंडियन मैपिंग भी पढ़ाती जाऊंगी सो दैट यू कैन ईजिली एसोसिएट विथ व्हाट वी आर स्टडीइंग. एंड अगर वो एसोसिएशंस आपके दिमाग में क्रिएट होते गए तो देन नो वन कैन स्टॉप यू. Hey ma'am, I've also been seeing on your YouTube channel, you've been doing a great job with mapping. I'm sure a lot of students have seen ma'am's Mapping Mangalwar series. So I think ma'am, mapping and geography, if we integrate, especially if we integrate the concepts, I think the students will be able to learn a lot. Absolutely, sir. Right. So for pre as well as for mains, ma'am, this is the approach we're going to follow. Absolutely. Right. So thank you ma'am for your input. Thank you so much, sir. So now coming to ethics and essay. Ethics and essay के लिए हमारे पास एक ऐसी faculty हैं जिनको बहुत rightly rank machine कहा गया है. Sir, so many toppers in the last few years have, commented on your teaching. They have given you so much credit for improving their marks. तो सर यहाँ हम चाहते हैं कि जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्हें कोई अलग से मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए ना जाना पड़े, वो पहले दिन से ही हाई मार्क्स लेके आएँ. तो सर एथिक्स में वो काम हम कैसे इंश्योर करेंगे? व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी वी गोइंग टू फॉलो फॉर एथिक्स? तो इसका एक आंसर दें तो ये समझ लेते हैं कि मार्क्स आते क्यों नहीं है.
Right. अगर हमने उसको क्रैक कर लिया तो आई थिंक हमारे लिए आसान हो जाएगा जी सर। कि जो काम बाद में बच्चे करते हैं उसको फाउंडेशन में क्यों ना कर लें। राइट। तो अगर आप पेपर देखेंगे एथिक्स का, मेरा गुजारिश है कि आप जरूर पेपर खोलिए और देखिए, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं। आप क्वेश्चन देखिए। Right. और ये तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि टेस्ट ऑफ एनी मेंटरशिप इज कि हम पीवाईक्यू कितना वो समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। राइट। और आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे पूछ रहा है कि इस थिंकर के बारे में 5 बातें बता दो, जैसे बोर्ड्स में हम पढ़ते आए हैं। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक पढ़े लिखे इंसान का आंसर करना है और उसमें एथिकल पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करना है। Right. तो बात आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। तो हम फाउंडेशन में ही आई थिंक वो जगह है जहां पे हम रियल फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख सकते हैं। और ये मेरा इंडीवर रहेगा कि जब भी हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। जैसे एक टॉपिक हुआ, साथ साथ बताऊंगा कि देखिए क्वेश्चन आप ऐसे इसको लगा सकते थे। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत वैल्यू ऐड करेगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में। और केवल यहीं पे नहीं, एक सेपरेट सेशंस भी लेंगे जिसमें आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से काम होगा, 2 लेवल पर काम होगा। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसके संग कौन से क्वेश्चंस हैं, ये तो एक बात हो गई। पूरा सिलेबस हम ऐसे कराएंगे। उसके बाद सेपरेट आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे जिसमें एग्जैक्टली टेम्पलेट्स का यूज कैसे करना है, डायमेंशंस और कैसे खोलने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। राइट सर। सर एक और चीज़ है जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ना बहुत डरते हैं, आंसर वो है कि एस्से कैसे लिखना है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट से टॉपिक्स हैं, 10-12 पेज लिखने हैं, द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कई बार तो पढ़ के समझ भी नहीं आता कि ये ऐसे लिखा क्या हुआ है और उस पर आपको 10-12 पेज लिखने हैं। तो सर ऑब्वियसली उसमें नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट वो राइटिंग स्किल फॉर एस्से वो हम कैसे डेवलप करेंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही कि नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है पर राइटिंग स्किल्स इज द मेन गेम ऑफ एस्से। राइट सर। और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई थिंक आपकी जानकारी में ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके जीएस में उतने अच्छे नंबर ना होंगे पर एस्से में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया होगा। जी। दैट इज ऑल बिकॉज की राइटिंग स्किल्स पे उनका कमांड है। तो जब हम आपके संग ऐसे पर काम करेंगे तो बाकी सब जो टीम में धुरंधर जुड़े हैं, जी सर। पूरी धुरंधरों की टीम आई थिंक कंटेंट तो आपका सॉलिड करा ही देगी। तो मेरा काम तो आप लोग काफी आसान करोगे। जी सर। उसके बाद मेरा बस काम है कि आपको राइटिंग स्किल से बात करना, कि जब टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के थीम्स के अराउंड सोचना कैसे है। Right. और ये आप अगेन मैं कहूंगा पेपर उठाइएगा और आप देखेंगे कि यूपीएससी का एक पैटर्न है, ऐसे का भी एक पैटर्न है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और उन्हीं थीम्स के अराउंड हम साथ में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आप करेंगे और मैं साथ में करूंगा। हम क्वेश्चंस देंगे और मैं बताऊंगा कि देखो ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था। और मुझे लग रहा है यही ट्रू टेस्ट ऑफ एनी पेडागोजी है। ये नहीं है कि ये टॉपिक कैसे करना, अरे भाई ये टॉपिक आए ना आए, लेकिन कोई और टॉपिक भी आ गया तो आप कैसे सोचोगे एक्चुअल पेपर में, हम उस पर काम करेंगे और वो आप और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे। तो सोचने पे बात करना है कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, जो एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक आ रहा है उसके बारे में हम कैसे एलॉबरेट कंटेंट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो बाकी जीएस पेपर में हमने गेन करी है उसका एक बेहतर यूज हम कैसे कर सकते हैं, और फिर उसको लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का मतलब हम तो इंजीनियर हैं भाई, ठीक है, तो हमने भी कोई ऐसे नहीं लिखे, तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम उस स्किल पे भी काम करेंगे कि एक्चुअल में ऐसे लिखते कैसे हैं, एक्चुअल में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी, कैसे ऐसे को एक हाई नोट पर एंड करा जा सकता है। और वो कहा भी गया करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, आप और हम मिलके साथ में प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल नंबर लाएंगे ऐसे। सर आई थिंक यू हैव पॉइंटेड अ वेरी गुड थिंग आउट हियर कि एक्चुअली राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है जितनी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। एंड अगर हमें सोचना आ जाए, हमें वो ब्रेनस्टॉर्म करना आ जाए, तो we'll be able to write wonderful essays. Thank you so much, sir, for your input here. Thank you so much for having me here, Dr. Shiv. Thank you, sir. So now for the two important things in this foundation course, we have Varun sir with us. One is international relations. तो सर पहले इसकी बात करते हैं। Important subject है, सब लोगों को बहुत पसंद है IR पढ़ना. But sir, I think how are we going to make this IR exam centric? That is where I think students will need this guidance from you. तो सर हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर? राइट सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आईआर आई विल बी टीचिंग यू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। राइट। ऑल्दो बेसिक कंटेंट सेम रहता है, बट जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आईआर के पूछ रहा है और जिस टाइप के मेंस में पूछ रहा है उसमें डिफरेंस है। प्रीलिम्स में यूपीएससी आईआर के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन पीपल आर डूइंग कि आईआर प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं आईआर खाली मेंस के लिए यूटिलाइजेशन है। तो हम प्रीलिम्स के लिए भी आईआर पढ़ेंगे डिटेल में, उसके साथ साथ मेंस में जिस लेवल का एनालिटिकल आईआर के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि कोई भी अगर फॉरेन पॉलिसी आई है ना तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ईयू फॉरेन ट्रेड डील हुआ, ठीक है,
तो उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो एनालिटिकल सेंस में हम डिटेल कवरेज यहाँ पे आईआर की करेंगे। एक चीज का मैं आईआर में ध्यान रखूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड हिस्ट्री, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं आईआर में, बस क्रोनोलॉजी पढ़ाते हैं कि 1950 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, 1953 में ये हुआ। एक ब्रॉडर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ। लेकिन मेरा फोकस किस चीज पे रहेगा कि इसे हम हिस्ट्री की क्लास ना बनाए, इसे हम आईआर की क्लास बनाए और एक डिटेल एनालिसिस में आपको दूं आईआर का। सेकेंडली सर, द आइडिया ऑफ लाइव आंसर राइटिंग। सर जब मैं पढ़ रहा था, दिस इज व्हाट आई फाउंड द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया एट दैट टाइम इन 2021 एंड 22। तो सर एक बार मैं चाहूंगा ब्रीफली आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये आइडिया क्या है। देखिए, लाइव आंसर राइटिंग सेशन इज अ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जहां पे कि आपका आंसर राइटिंग का इनर्शिया हमें खत्म करना है ना। वी विल बी डूइंग 40 लाइव आंसर राइटिंग सेशन। एक सेशन में 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे मैं आऊंगा स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको आइडिया दूंगा, डिमांड समझाऊंगा क्वेश्चन की, उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा एंड यू विल राइट द क्वेश्चन देन एंड देयर। आप भाग नहीं सकते, आपका इनर्शिया मैं खत्म करूंगा। 5 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक आप मेरे साथ लिखोगे, मैं आपको डिमांड समझाता जाऊंगा, हिंट्स आपको दूंगा, लिखोगे लेकिन आप, टाइमर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ऐसे जब पूरे सिलेबस पे मेंस के GS 1 2 3 4 इंक्लूडिंग एसे जब आप आंसर राइटिंग कर लोगे तो हर जगह आपका इनर्शिया खत्म हो जाएगा। This is how you will learn answer writing practice in this foundation course. So now comes our OG Shivin sir, what he is going to do in this foundation course. सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर मेंटोरशिप सेशन। तो सर ये आपने अभी एक्सप्लेन किया सभी स्टूडेंट को कि दिस इज द न्यू फीचर दैट वी हैव एडेड इन दिस फाउंडेशन कोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं GS3 मेंस की। तो कैसे हम GS3 प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट को? सर सो फर्स्टली लेट मी क्लैरिफाई कि GS3 मीन्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ देम आई विल बी कवरिंग लाइव विद यू इन डिटेल। तो सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड सर आइडिया सिंपल है, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दीज सब्जेक्ट्स, माई ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी क्लियर। लास्ट ईयर सर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आई हिट ऑल 20। अब वही ट्रैक रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई रेपुटेशन। 20 आउट ऑफ 20 इज द टारगेट कि यार सारे क्वेश्चन हिट हो और रट के कुछ नहीं जाएंगे। We will have the best content. I research a lot so that you don't have to. एक single stop solution है, ये डॉक्यूमेंट मुझे पढ़ना है, इसमें ही वैल्यू एडिशन है, इसमें ही डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें ही सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है। मैं ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और मैं मेंस में जाऊंगा एंड आई वुड हैव ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस covered from this one source. I also cover the economic survey and budget here in completion. तो आपको कहीं और इवन करंट अफेयर्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है for GS3. So this is my job and we are going to cover it completely. राइट, सो दिस इज अबाउट GS3। Right. अब बात करते हैं सर राइट स्मार्ट की, जो सारथी AIS की रिजल्ट मशीन है। एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है राइट स्मार्ट का? सर राइट स्मार्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा हमारा मेंस का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। मेंस में कंटेंट एक तरफ हो गया है, जैसे आपने मेरे साथ GS3 पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, नोट्स मिल गए। अब आंसर लिखने के लिए पहले आपको कोई आंसर लिखना सिखाएगा ना। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, यू डोंट लर्न इट, इट्स नॉट ऑर्डेन्ड व्हेन यू आर बोर्न, राइट? आप सीखते हो उसको धीरे धीरे। तो वो कॉन्सेप्ट है राइट स्मार्ट कि एक एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं, और ये मैं आपके साथ मेंटरशिप सेशंस में भी करूंगा इन अ स्मॉल वे कि एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और यार इसको लिखते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सबको लिख लिया और मैंने इसके लिए 13 अप्रोचेस डेवलप करी हैं, वी लर्न दीज 13 अप्रोचेस। आइडिया सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मैं कहूंगा यार आप सोचो पहले आप इस आंसर को कैसे लिखते हैं। कंटेंट पढ़ चुके हो आप भी, मेरे को भी थोड़ा बहुत कंटेंट आता है, आप सोचो आप कैसे लिखते हैं। आपने 3 मिनट लगा के सोचा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार मैं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता, फिर आप कुछ सीखोगे मेरे सोचने के तरीके से, मैं आपके सोचने के तरीके से कुछ सीखूंगा। ऐसे हम 400 क्वेश्चंस करेंगे। 400 बार में ये एबिलिटी आप पे ट्रांसफर हो चुकी होगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इंट्रो में ये जाएगा, कंक्लूजन में ये जाएगा, बॉडी में ऐसे डिवाइड होगा, ये डायग्राम बनेगा। एंड वंस दैट इज इंग्रेन्ड इन योर माइंड, और फिर आपने लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली वरुण सर के साथ, तो आंसर राइटिंग का जो फियर है ना, वो आंसर राइटिंग का फन बन जाएगा। राइट, आपको लगेगा यार और क्वेश्चन दे दो मुझे। लिटरली सर आफ्टर एवरी बैच ऑफ राइट स्मार्ट दिस इज द फीडबैक आई गेट कि सर अब और क्वेश्चन लिखने का मन है। राइट, और मैं कहता हूँ नहीं अब बस बहुत हो गया, आप प्री के लिए पढ़ लो, राइट? सो दैट इज द आइडिया। यू डू दिस कोर्स विद मी एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आंसर राइटिंग एवर। इट इज द की स्किल फॉर UPSC मेंस एंड वो मेरा काम है। एंड एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, देखिए राइट स्मार्ट और लॉस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। राइट स्मार्ट और लॉस से पहले क्या कल्चर चलता था इस UPSC प्रिपरेशन इकोसिस्टम में कि आप कंटेंट पढ़ के सीधा टेस्ट सीरीज देने जाते थे, उसके बीच में गैप था कि यार आपने कंटेंट पढ़ा, आंसर राइटिंग तो आपने सीखे नहीं, अब सीधा आप जाके टेस्ट दे रहे हो।
है ना, और वो चीज कभी वर्क करती नहीं थी। होता क्या था कि लोग एक टेस्ट सीरीज लिख के एक मेंस फेल होके फिर सीखते थे, फिर अगले साल मेंस देते थे, है ना। तो यहाँ पे माय स्टोरी सर। राइट, तो दिस इज हाउ यू विल ब्रिज दिस गैप। आप राइट स्मार्ट और लॉस के थ्रू वो गैप ब्रिज कर रहे हो कि आंसर राइटिंग सीख ली, इनर्शिया खत्म कर दिया, अब आप रेडी हैं टेस्ट सीरीज के लिए और आगे आंसर राइटिंग के लिए। राइट सर। So now comes last two subjects which are mostly ignored by the student, है ना, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो हाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट इन आवर फाउंडेशन कोर्स? सर पहले तो ये मिथ मैं ब्रेक कर दूं कि ये करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट करंट अफेयर्स किसी भी चीज का, आप आज का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, किसी भी चीज का करंट अफेयर समझने के लिए स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सर जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये क्लासेस सबसे ज्यादा पसंद आएंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस्ड। एंड जो कोई साइंस बैकग्राउंड का ना भी हो, वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंसेप्चुअली क्लियरली अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, डीएनए आरएनए में फर्क क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल कॉप 30 कॉप 29 डिस्कस होता रहता है ये क्या है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है। एंड सर आगे चलते हुए यूपीएससी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ये हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, शायद 2015 में ये सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट हमारी रियल लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट। एआई वाज नॉट समथिंग दैट वाज एग्जिस्टिंग 3 years ago, बट आज उसके बिना शायद हम गूगल सर्च करना हमने बंद कर दिया है, बट चैट जीपीटी हिस्ट्री आप किसी को नहीं दिखा सकते, राइट। सो द आइडिया हियर इज क्लियर, वी विल लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स in detail, and being a doctor sir, it comes naturally to me. This is my training, this is what I've studied for my entire life, and now I'm going to impart this learning to you. So in the past few years, what we have seen is कि one of the major problem for the candidates who are giving their first attempt is not GS, rather CSAT. बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में GS में तो फिर भी मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बट CSAT कहीं ना कहीं उनका मिस हो जाता है, और CSAT पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने डिफिकल्ट भी कर दिया है ना। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू वी हैव विद अस Ram Mohan Pandey sir. He is my senior from IIT Roorkee. He has guided lot of aspirant for the CAT examination as well, and now he is guiding UPSC CSE aspirant for the CSAT in past 15 years. Sir, welcome to Sarthi IAS. Sir, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि what is the biggest challenge you have seen जो aspirant face करते हैं CSAT में? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं आपको बताऊं वरुण सर, तो ये है कि जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है ना, तो वो सबसे पहले फोकस करते हैं जीएस पे, और सिलेबस इतना वास्ट है कि उसकी वजह से बहुत सारा टाइम उनका जीएस में चला जाता है, और जाना भी चाहिए, तो उस वजह से कहीं ना कहीं सीसेट बैक सीट पे रह जाता है, तो सीसेट पे वो फोकस ही नहीं कर पाते। ये एक थोड़ा सा चैलेंज आता है, बहुत बाद में वो शुरू करते हैं सीसेट। राइट, तो सर मेजरली द प्रॉब्लम जिसको आपने डिस्क्राइब किया, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि सीसेट को भी अब एक सब्जेक्ट की तरह लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बच्चों को सीसेट बताने के लिए? स्ट्रेटेजी ये रहेगी सर, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सीसेट का जो पेपर था पहले जैसा होता था, तो पहले इट यूज्ड टू बी एन ईजी पेपर, वो आराम से क्लियर हो जाता था, तो बहुत सारे लोगों का अभी भी परसेप्शन यही है सीसैट को लेकर के, सीसैट तो कर लेंगे, बट एक्चुअली अभी ऐसा हो नहीं रहा। सीसैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो अभी कैट लेवल के भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले कैट में पूछे जा रहे थे, अभी सीसैट में वो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि सीसैट को आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है, बिकॉज नाउ सीसैट इज नॉट दैट इजी एट इज यूज्ड टू बी, और हम सीसैट को एक्चुअली बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि सर मुझे तो मैथ्स फोबिया, वो नंबर्स देखते ही डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एन आईएएस ऑफिसर नीड नॉट टू बी अ मैथमेटिशियन, ही हैज टू बी द लॉजिकल पर्सन। राइट, आपको सोचना आता हो, आपको प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंड करनी आती हो, ये जरूरी है। तो बेसिक लेवल से कवर करेंगे, सारे फॉर्मूलाज बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद जैसे हम अपने रिवीजन प्रोग्राम में भी कराते हैं, वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इन सीसेट क्लासेस एज वेल, व्हिच राम मोहन पांडे सर विल टेक एट सारथी आईएएस। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। So the students who are part of our Foundation Plus program, they will have an option of one-on-one mentorship, and it is Sajal Singh sir who heads this one-on-one mentorship. One-on-one mentorship में you get access to this person, Sajal sir, who has been the mentor to 550 successful rankers, including Shakti Dubey, who was All India Rank 1 in UPSC CSE 2024. तो सर ये जो one-on-one mentorship program है, इसमें कौन लोग mentors हैं, कैसे इनको रन करते हैं, क्या बच्चे अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। तो सर ये सारी डिटेल्स प्लीज आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए डेफिनेटली नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द क्लासेस एंड एवरीथिंग। बट होता क्या है कि हर एक बच्चा एक डिफरेंट लेवल पे होता है, कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, कोई बच्चे को थोड़ा आइडिया है, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा है, कोई पॉलिटी में अच्छा है, प्लस
बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं कि पीपल आर हार्ड वर्किंग, एस्पिरेंट इज हार्ड वर्किंग, बट वो शायद कंसिस्टेंट नहीं है या शायद बीच बीच में वो अपने ट्रैक से बाहर चला जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यू हैव अ पर्सनल मेंटर, और पर्सनल मेंटर कोई ऐसा मेंटर नहीं है, ही इज इंटरव्यू गिवन पर्सन, और जो हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो 76 इंटरव्यूज का है। तो हमारे सारे मेंटर इंटरव्यू गिवन है। और हाउ डज इट वर्क? सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें आई विल टेक 30 मेंटरशिप सेशंस, ग्रुप सेशंस टेक्निकली, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि चीजें अप्लाई कैसे करें। जो चीजें मैंने इन 550 प्लस रैंकर्स को बताई हैं, the techniques, the smart work, how to write, answers, how to exactly, apply your knowledge to solve the prelims question. ये सारी चीजें मैं आपको through these 30 sessions बताऊंगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका एक पर्सनल मेंटर भी रहेगा, और वो पर्सनल मेंटर जो है, the mentor will help you with many things. सबसे पहले स्टार्टिंग में टारगेट देगा आपको कि भाई एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट 14 डेज में ये चीजें करनी है, क्योंकि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये एक दिक्कत फेस करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि वो अपना डे कैसे डिवाइड करें। सो उसके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल रहेगा उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और उसके बाद आफ्टर 14 डेज द मेंटी हैज टू आल्सो फिल द अकाउंटेबिलिटी शीट, जिसमें वो एग्जैक्टली जब नेक्स्ट टाइम वो मेंटर से मिलेगा तो वो एग्जैक्टली बताएगा कि मैंने लास्ट 14 डेज में ये किया, ये टारगेट पूरा किया और ये मेरे गैप्स है, राइट। बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट मीटिंग में मेंटर जो है उसके उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उस प्लान को चेंज करेगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स का प्लान देगा। तो एक प्रॉपर आपके पास एक पर्सनल मेंटर रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, जो आपकी काफी चीजों में हेल्प करेगा, आपके नोट्स बनाने में, आपके आंसर्स रिव्यू करेगा, राइट, आपको एग्जैक्टली इंश्योर करेगा, बिहेवियरल सपोर्ट देगा, एवरीथिंग। ही विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। यू हैव एनी प्रॉब्लम, रीच आउट टू योर मेंटर। तो सर जस्ट टू क्लैरिफाई हियर कि जो सारे मेंटर्स हैं इस प्रोग्राम में सब इंटरव्यू अपीयर हैं, यस एंड द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू देम एवरी 15 यस 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 बात कर सकते हैं Yes, आपसे yes. पर्सनली, यस एंड जो भी उनके प्लानिंग इश्यूज हैं, Yes. जो भी अदर देन एकेडमिक्स एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक इश्यूज, जो भी ओवरऑल जो इश्यूज हमारी जर्नी में आते हैं, इफ दे नीड समवन टू शेयर दिस विद, यस वो यहाँ पर वन ऑन वन मेंटरशिप में हम इंश्योर करें। यस। इनफैक्ट यहाँ तक हमारे मेंटर्स हेल्प करते हैं कि लेट्स से आपने कोई क्लास करी और उसमें आपको ये लग रहा है कि सर इस टॉपिक में मेरे को ये चीजें ढंग से समझ में नहीं आ रही, आप कुछ अगर मेरे को स्मार्ट वे बता दो, तो वहां तक भी वो लोग हेल्प करते हैं। सो मेंटर्स जो हैं वो आपका एक वन स्टॉप, मतलब टेक्निकली ही विल बी योर बिग ब्रदर, and usually we don't have access to that big brother, so we go to certain people and you get misguided. That person और इन mentors के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा। तो अल्टीमेटली जैसे मैं आपको मेंटर करूंगा, इन द सेम वे दिस पीपल विल मेंटर यू। और आपकी कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल आल्सो। Right. So thank you, sir. I think a lot of people who are a part of this program will definitely benefit from this one-on-one mentorship journey. Thank you, sir. So the final stage of this examination is interview. And interview की preparation के लिए at Sarthi IAS we have Saloni Khanna ma'am with us. She's an assistant professor in DU and taking interviews of UPSC aspirant from 2019. I think thousands of interview ma'am has taken in last 6 to 7 years. Welcome to Sarthi IAS ma'am. थैंक यू। मैम इंटरव्यू के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, लाइक रिसेंटली इंटरव्यूज की प्रिपरेशन अभी चल रही है, बहुत सारे इंटरव्यूज आप एस्पिरेंट के ले रहे हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बिगेस्ट लिमिटेशन है इंटरव्यू में? एक सेइंग है कि रोम वाज़न्ट बिल्ट ओवरनाइट, वो मुझे लगता है कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स इनके केस में 100% ट्रू है। लोग तैयारी शुरू करते हैं इंटरव्यू की जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है, 2-3 महीने बचते हैं उनके पास, और फिर वो सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा गेम चेंजिंग स्टेज है यूपीएससी का, जिसकी तैयारी 2-3 महीने में हो ही नहीं सकती, और इस बारे में कोई क्यों बात नहीं करता है मुझे समझ ही नहीं आता। आई एम सो ग्लैड कि वरुण सर ने इस इशू को उठाया है कि हम कैंडिडेट्स को समझाएं कि उनकी पर्सनैलिटी उनको प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ देयर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो वी एट सारथी आईएएस आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट कि हम आपको ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क्स दें, हम आपके माइंडसेट को ऐसे प्रिपेयर करें, हम आपको ऐसे इंटरवेंशन सेशंस दें जिससे आपका मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको टेंशन नहीं हो। जैसे मैं आपको सर से मैं डिस्कस कर रही थी कि मेरे पास एक कैंडिडेट आए जो बहुत परेशान थे, मेंस तो निकल गया लेकिन अब इंटरव्यू में कैसे अपीयर करें ये पता ही नहीं। Right. तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें पहले दिन से इंटरव्यू की भी तैयारी कराएं। और पर्सनालिटी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम तक सीमित रह जाती है। Right. ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी आज बिल्ड हो गई तो बस यूपीएससी इंटरव्यू में ही काम आएगी।
ये पर्सनालिटी, ये माइंडसेट आपकी बाकी सारी स्टेजेस को भी ईजी करता है. अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कॉन्फिडेंट है, वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में रिफ्लेक्ट होगा. बिल्कुल. अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो आर्टिकुलेट कर सकता है, उसके चांसेस मेंस में स्कोर करने के बेटर है. या स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये आपको हर स्टेज पे हेल्प करेगा. तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको पहले दिन से ऐसा गाइड करें कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीजें रिफ्लेक्ट हो और आपकी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड हो कि जब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचे तो आप डरे ना हो, या आपको पता हो कि आपको इस स्टेज पर भी क्या करना है. हम आपका साथ ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे मेंस के बाद, हम आपका साथ इंटरव्यू तक देने वाले हैं. राइट. तो आई थिंक यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस की जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड हमें लिखना चाहिए था मैम. जी. एंड राइटली यू सेड वन थिंग. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आप पहली बार मेंस क्रैक करते हो, पहला इंटरव्यू देने जाते हो, इनफैक्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है सारथी आईएएस रन करने के बाद भी, 80% स्टूडेंट पहले इंटरव्यू में खराब मार्क्स स्कोर करते हैं और दूसरे जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना. तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो पहली बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस क्रैक करने के बाद स्टार्ट कर रहे होते हैं, है ना. तो फिल दैट गैप हमने इंटरव्यू गाइडेंस को आपके इस फाउंडेशन प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया है. फॉर दैट Saloni ma'am will take regular session on the personality development part for this examination. So now in your whole UPSC syllabus, there are few aspects which are left. So there are few faculties which couldn't be here for the recording of this video. Still I'll tell you. तो देखिए आपका इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन जो है GS1 का, that will be covered by Pranay Agrawal sir. He has a teaching experience of more than 15 years now. He's also sociology faculty at Sarthi IAS, and this makes him a natural choice for the Indian society section. What he is going to do in the Indian society section, there are 10 topics जो UPSC ने GS1 के सिलेबस में दिए हैं और काफी predictable हैं. तो सारी major theme contemporary plus PYQ he will cover within the society lecture. And in the end, the last one is Jasleen Kaur ma'am. She had given 1 UPSC interview and 3 UPSC mains. She will be doing 2 things जो 2 new added features हैं सारथी आईएएस के फाउंडेशन प्रोग्राम में. One is live MCQ solving. तो रेगुलर जैसे आप कोई कंसेप्ट कवर कर लेंगे, कुछ क्लासेस, कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, तो उन टॉपिक्स पे लाइव MCQ सॉल्विंग जसलीन मैम विल टेक. एंड द सेकंड इज मेंटोरशिप सेशन. ठीक है. तो दिस इज द कंप्लीट फैकल्टी लाइनअप एंड कौन फैकल्टी आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला है, दैट वी हैव एक्सप्लेन टू यू. सो नाउ लेट्स चेक आउट द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ दिस होल प्रोग्राम. देखिए वी आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ February. 16 February को आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा. वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी सब्जेक्ट. आफ्टर द इकोनॉमी वी विल मूव ऑन टू द हिस्ट्री सेक्शन, देन ज्योग्राफी वी विल कवर एंड देन पॉलिटी. तो जैसे कि शिविन सर ने स्टार्टिंग में बोला था, 4 मेजर सब्जेक्ट जो आपके फाउंडेशनल लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए, इन 4 सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इन 4 सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द मेंस प्रिपरेशन. ठीक है. देन हम स्टार्ट करेंगे जुलाई से MMP प्लस, विच इंक्लूड द कंटेंट ऑफ GS 1, 2, 3, 4 essay, write smart as well as live answer writing session. तो somewhere this MMP preparation या mains preparation will go on till December, but November से we will also start the CSAT, है ना. राम मोहन पांडे सर will take live classes क्योंकि CSAT को हम लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे. तो नवंबर दिसंबर में along with the mains preparation we will do the CSAT as well. देखिए एजेंडा ये रहेगा, हम आपको बाद में भी बताएंगे कि वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप इन 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट को रिवाइज भी करोगे, राइट. रिवीजन पैरेलली होना बहुत जरूरी है. देन जनवरी, फरवरी, मार्च में, जनवरी में साइंस एंड टेक क्लासेस विल बी टेकन बाय शिविन सर. फरवरी में हम एनवायरमेंट कवर करेंगे और मार्च में एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर. ये 3 सब्जेक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च में क्यों रखे गए हैं? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद ज्यादा करना पड़ता है, फैक्ट ज्यादा याद रखने पड़ते हैं. तो एज मच एज क्लोजर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमने इन सब्जेक्ट को रखा है. ठीक है. इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए कि आपको रिवीजन का टाइम ना मिले. दैट इज वाई जनवरी, फरवरी, मार्च, विच इज 3 to 4 month प्रायर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इन सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं. करंट अफेयर हम आपको कवर करेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स. करंट अफेयर क्लासेस विल हैपन जनवरी 2027. ठीक है. समझ में आया? तो दिस विल बी द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम. इस टाइप की सैंपल नोट्स हम इस प्रोग्राम में आपको देने वाले हैं. देखिए एवरी टीचर एंड एवरी सब्जेक्ट हैज अ यूनिक रिक्वायरमेंट, है ना. तो आपके नोट्स भी उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करेंगे, है ना. कहीं पे हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे माइंड मैप इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए और कहीं पे डिटेल PDF चाहिए, है ना. बट वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा. आपको उन नोट्स के अलावा अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज आवर कमिटमेंट. नाउ फाइनली चेक आउट द प्राइसेस ऑफ दिस कोर्सेज. तो एज सारथी आईएएस का जो टैगलाइन है उसमें ही अफोर्डेबिलिटी है. वी आर फॉलोइंग द सेम अप्रोच. तो देर आर 2 वर्जन्स ऑफ दिस फाउंडेशन प्रोग्राम विच वी आर ऑफरिंग यू. वन इज फाउंडेशन, अदर इज फाउंडेशन प्लस. These are the prices. As you can see, they are very affordable.
रिमेंबर दिस थिंग, फाउंडेशन और फाउंडेशन प्लस में क्या डिफरेंस है? ओनली वन डिफरेंस इज देयर, फाउंडेशन प्लस में आपको एक 1-on-1 मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जिसने कि इंटरव्यू दिया होगा यूपीएससी जर्नी के लिए, राइट? मेंटोरशिप आपकी फाउंडेशन प्रोग्राम में भी है, बट फाउंडेशन प्लस में 1-on-1 मेंटर है, एक मेंटर जो डेडिकेटेडली आपके लिए है, आपकी जरूरतों के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए, ठीक है? सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्रोग्राम में. एज पर योर रिक्वायरमेंट यू शुड चूज, ठीक है? सो दीज आर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ लाइव जीएस फाउंडेशन बैच 2027. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, स्टिल आपकी कोई क्वेरीज अगर बची हैं, तो यू कैन सेंड अस द मेल ऑन ask@sarthi.com, या आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कोर्स के अंदर.